Hello students. So session 23. In session 22 if you recall we were talking about bad news, malice, अगर आपने पढ़ा है तो उसमें मैल की बात करी थी. Now session 23 is talking about the good news. See, so now what is the good news? If you recall 22 session, he said good news we'll talk about in session 23. So let's talk about the good news. Means the word that sound good. Like malice is bad. If you recall in the last session, bonus is good. Now that is the difference. Malice अगर आपको याद है हमने कहा था कि लैटिन वर्ड से आया, फ्रेंच वर्ड से आया, तो malice is bad and bonus is good. Now the adverb from the Latin adjective bonus is means bane, and bane is the root found in words that contrast with mal, terms we studied in the previous session. जितने भी word mal वाले हैं वो bane उसका opposite वाला word बन जाएगा. Clearly understandable है. So benign and benignant, जैसे वहाँ पर आपको यह malign and malignant था, ऐसे benign and benignant are kindly, good natured, not harmful, as in benign neglect कि आपने बॉदर नहीं करा, चल जाने कह दिया किसी ने, कोई फर्क नहीं पड़ता. As in benign neglect, a benign judge, a benign tumor which is not cancerous, a benignant attitude to malefactors and scoundrels. किसी ने आपके साथ गलत करा, कोई malefactor जो गलत करने वाला है, उसके लिए आपके मन में क्या है, benignant attitude है, चल जाने दे कोई बात नहीं. That is good natured kind of thing. The corresponding nouns are benignity and benignancy. These are the nouns बन जाएगा. ITY से noun बनता है और NC से भी बन जाएगा. Benignancy is the noun. Now benign I've told is which is not harmful, genial और kindly भी हमने बोला, तभी हमने बोला benignant attitude हो जाएगा, benign neglect हो जाएगा. Tumor, अब you know it was this cancer होता है. Benignant is less common term for benign, वो same ही term है. और scoundrel तो you know a dishonest person होता है. A malediction is a curse, जैसे benediction was a will be a blessing. तो malediction हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट सेशन में. malediction, diction means to say, तो malediction is a curse, a benediction is a blessing, as a saying good. The adjective is benedictory हो जाएगा. In contrast to maleficent is beneficent हो जाएगा. doing good, तो फिर नाउन क्या बनाएंगे आप बता सकते हैं? अगर आपका नाउन बनाना होगा तो फिर क्या बनाएंगे? बेनिफिक्शन हो जाएगा. ओके. इन कंट्रास्ट टू मैन्युफैक्चर इज that with the word that will be the noun. In contrast to malefactor is benefactor, one who does good things for another. Obviously malefactor wrong or benefactor good, as by giving help, providing financial gifts or aids, or coming to the rescue when someone is in need. If you insist on making sexual distinctions, यानी अगर आप मेल और फीमेल के बारे में अलग वर्ड लगाना चाहते हैं, जैसे पोइट का पोइटस लगा देते हैं, वैसे ही वुमेन हु सो ऑपरेट्स इज अ बेनिफैक्ट्रेस हो जाएगा. अगर आप बेनिफैक्टर हैं तो वुमेन के लिए बेनिफैक्ट्रेस वर्ड लगा देंगे अगर आप कहना चाहते हैं तो स्पेशली. एंड ऑफ कोर्स द पर्सन रिसीविंग द बेनिफिक्शन, द रेसिपेंट ऑफ मनी इज बेनिफिशरी. याद रखिए बेनिफैक्टर और बेनिफिशरी में बड़ा दिक्कत आती है याद करने में. तो जो फैक्टर है उसको करने वाला, जो फैक्टर है वो बेनिफैक्टर है, और जो रिसीव करेगा वो बेनिफिशरी हो जाएगा. ओके. बेनिफिट and beneficial are other common words built on the combination of being and a form of fatio, to do or make. You know this. Fatio is to make. काफी काम आएगा वर्ड, याद रखिएगा आगे आने वाले टाइम में. देन सो लेट अदर्स बी मैलेवोलेंट टूवर्ड्स यू, दूसरे आपको हार्म पहुंचाते हैं. कंफ्यूज देम बाय बीइंग बेनेवोलेंट, आप थोड़ा साइलेंट रहिए, आप हार्म मत करिए. आप अगर वो आपके साथ गलत कर रहा है आप रिएक्ट ही नहीं करेंगे, बुद्धा जैसे हो जाएंगे, तो सामने वाला परेशान हो जाएगा, यार इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता. इस दैट्स व्हाट से कंफ्यूज देम बाय बीइंग बेनेवोलेंट. विश देम वेल, दैट्स व्हाट से. तो फिर टर्न द अदर चीक, गांधीयन तो दैट इज व्हाट द केस इज. यू जस्ट रिएक्ट नॉर्मल, कुछ नहीं. विश देम वेल, व्हाई नॉट. और उसका अगर नाउन बनाना हो तो क्या बनेगा? ऑब्वियसली मैलेवोलेंस बन जाएगा. ठीक है.
So now I've written the word maleficent, beneficent, malefactor, and malevolent for you people. You can very well see the name. ठीक है? Then the adjective bonus. Good is found in English bonus. Extra payment. Normally offices में people get, factories में bonus मिलता है. That is the bonus. Extra payment. Theoretically, but not necessarily for some good act. किसी गुड एक्ट के लिए देखा जाए तो आपको वो बोनस दिया जाता है. कंपनी अगर परफॉर्म बढ़िया कर रही होती है तो बोनस देती है कि भी वर्कर की वजह से वो बेनिफिट हुआ. तो बट फॉर सम गुड एक्ट के लिए. A bonbon, a sweet, a good, using the French version of the Latin adjective, and a bona fide. आपने सुना हो bona fide papers. Bona fide etymologically in good faith, यानी वो वर्ड तो बोनस से आया है तो that is good है, और in good faith, hence valid, with pretense, deception or fraudulent intent. विदाउट प्रिटेंस है, सॉरी. गुड फेथ मीन्स हैंस वैलिड होता है, और विदाउट प्रिटेंस जिसमें कोई प्रिटेंस नहीं होता. यू कैन वेरी वेल सी द वर्ड विदाउट प्रिटेंस, विदाउट डिसेप्शन, विदाउट फ्रॉडलेंट इंटेंट, एज अ बोनाफाइड ऑफर है आपकी तरफ से, ए बोनाफाइड एफर्ट टू नेगोशिएट डिफरेंस है, एंड एटसेट्रा. फाइट्स इज लैटिन फॉर फेथ और ट्रस्ट होता है. तो ये अगर आप देखेंगे बॉन हमने देख लिया, और फाइट मतलब फेथ के लिए यूज किया है, ट्रस्ट के लिए यूज किया है. तो यहाँ पर बोनस इज गुड एंड फाइड इज फेथ. तो बोनाफाइड, यू नो द वर्ड, वहां से वर्ड बन गया फाइडेलिटी. फाइडेलिटी मीन्स कंटिन्यूइंग लॉयल्टी टू ए पर्सन, कॉज और बिलीफ. आपकी फाइडेलिटी टूवर्ड्स योर कार है, टू योर स्पाउस है, दैट इज फाइडेलिटी है. मीन्स बीइंग वेरी लॉयल टू द अदर पर्सन. फेथफुलनेस. फिडो इज अ स्टीरियोटिपिकल नेम फॉर ए डॉग. नॉर्मली डॉग का नाम जो काफी पॉपुलर रहा, फिडो से यूज करते हैं क्योंकि वो फाइड वर्ड से ही कनेक्ट हुआ है. दैट फिडो इज अ नेम फॉर अ डॉग. वंस फेथफुल फ्रेंड. इनफाइडेलिटी. इनफाइडल, one who does not have the right faith or religion, depending on who is using the term, or one who has no religion. ऐसे आदमी को भी बोलेंगे. एंड इनफाइडेलिटी, अनफेथफुलनेस, स्पेशली टू द मैरिज वोज होता है. मैरिज में मैंने बोला अपने स्पाउस के लिए अगर आपकी फाइडेलिटी है या इनफाइडेलिटी है, दैट्स व्हाट इज ट्राइंग टू से. फाइडो वर्ड जो है आपका बोनस इज गुड हो गया, और हमने बोला कि फाइट्स वर्ड जो है वो फेथ को बता रहा है. तो वहीं से हमने काफ़ी सारे वर्ड निकाल लिए, चाहे वो बॉन निकाल लिया, चाहे फिर हमने बोनाफाइड निकाला, फिर हमने वहाँ से वर्ड और भी आपके लिए निकाले, इनफाइडल निकाला या फाइडेलिटी निकाला. दीज आर दी वर्ड विच इज एसोसिएटेड. नाउ वी से फाइडेलिटी, कंटिन्यूइंग लॉयल्टी टू ए पर्सन, कॉज और बिलीफ है. स्टीरियोटिपिकल, व्हाट टू से, अ स्टीरियोटिपिकल नेम फॉर अ डॉग, यानी स्टैंडर्ड में जो यूज होता है. एन इमेज और आइडिया और ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ ए पर्सन और थिंग दैट हैज बिकम फिक्स्ड थ्रू बीइंग वाइडली हेल्ड होता है. कई आपके एक्टर्स होते हैं, एक टाइप की मूवी करते हैं, फिर वो स्टीरियोटाइप्ड हो जाते हैं, उसी टाइप की मूवी मिलने लग जाती है, वो यानी वो फिक्स हो जाती है इमेज. इनफाइडेलिटी, आई टोल्ड यू, द एक्ट ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग सेक्सुअली अनफेथफुल, लैक्स ऑफ रिलीजियस फेथ, जहाँ पर आपका ट्रस्ट खत्म हो जाए, वो वाला. फिर वो हमने लिखा था मैरिज वोज, तो वोज प्लेज है. फिर वो जो है WOE, दैट इज सफरिंग है, और वू करना, किसी को इंप्रेस करना है. काफी क्लोज वर्ड्स हैं, दिस इज व्हाई रिटन फॉर यू. से, डू एंड विश. से के लिए तो हमने पिछली बारी वर्ड पढ़ ही लिया था. बेनेडिक्शन एंड मैलेडिक्शन डिराइव फ्रॉम डिको, डिक्टस टू से, यू नो. टेल, डिक्टेट, ऑब्वियसली वो अपनी टर्म्स डिक्टेट करेगा, यानी आपको कहेगा. डिक्टेटर, डिक्टेशन, डिक्टोरियल वर्ड्स दैट सिग्निफाई टेलिंग अदर्स व्हाट टू डू, आर बिल्ट ऑन डिको एज अ प्रीडिक्ट, पहले से ही कहा हुआ. टू टेल, बिफोर हैंड. टू से दैट समथिंग विल ऑकर बिफोर इट एक्चुअली डज, तो प्रेडिक्ट करते हैं. प्री मीन्स बिफोर होता है, एज इन प्रीसेंट. द ब्रांड नेम डिक्टोफोन कंबाइंस डिको एंड फोन. फोन तो आप जानते ही हैं. साउंड, कॉन्ट्राडिक्ट भी एक वर्ड आता है. कॉन्ट्राडिक्ट मतलब आप देख रहे हैं, से अगेंस्ट और मेक एन अपोजिट स्टेटमेंट. डोंट कॉन्ट्राडिक्ट मी, यानी मेरे अगेंस्ट कुछ मत बोलिए जो मैंने कहा है. दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स व्हाट आई नो. कंबाइंस डिको विद कॉन्ट्रा, यू नो. डिको इज टू से एंड कॉन्ट्रा मीन्स अगेंस्ट, अपोजिट. एंड एडिक्शन, एडिक्शन, डिक्टो यानी ऐड करते हैं, यानी आप उस सेइंग को फॉलो करने लग जाते हैं. ए सेइंग और टू वर्ड्स और द कंपल्शन टू से यस टू अ हैबिट कंबाइंस डिको विद ऐड, टू वर्ड्स हो जाता है, यानी एडिक्शन, ऐड डिको, एडिक्शन हो जाता है.
कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, डिक्टाफोन हो जाता है। नीचे मैंने डिक्टाफोन लिखा भी है, स्मॉल कैसेट रिकॉर्डर यूज टू रिकॉर्ड स्पीच फॉर ट्रांसक्रिप्शन एट ए लेटर टाइम। आपके मोबाइल में तो ऑडियो रिकॉर्डर आ गया, पहले एक छोटी सी मशीन होती थी कैसेट रिकॉर्डर टाइप का। व्हेन द बॉस इज गिविंग डिक्टेशन, दी सेक्रेटरी यूज टू गो देयर एंड देन रिकॉर्ड, फिर बाहर आकर सुनकर टाइप करके देती थी। आज भी गवर्नमेंट ऑफिस में वी हैव दैट काइंड ऑफ जॉब, यू नो, जिसमें टाइपिस्ट की जॉब होती है। तो आज भी हम हाथ से लिखते हैं, उसके अगेंस्ट वो डिक्टाफोन यूज होता था। यू नो द वर्ड डिक्टो एंड फोन, इज क्लियर विद यू। फेशियो, factus to do or make, has as noted variant spellings in English words फेशियो, factus जिसका मतलब है टू मेक है। मैन्युफैक्चर हमने देख ही लिया था, बेनिफैक्टर हमने देख ही चुके हैं, दैट वी नो। अब ये वर्ड जो है ना FEC से, FIC से और FY से भी बन जाते हैं वर्ड, कोई जरूरी नहीं है कि फेशियो फैक्टस ही लगे। कई और टर्म्स में भी FEC, FIC, FY वाले वर्ड भी होते हैं, वो मेक को इंडिकेट करते हैं, ये आपको याद रखना है। Now, thus factory, now you can very well understand, factory, यहाँ पर कुछ बनेगा ना, is a place where things are made, ORY लगा दिया, place where a fact or something, fact क्या है, something done, something that occurs or exists or is there true, fiction, you know it well, something made up or invented, fiction की stories होती हैं, novels होते हैं, manufacture, to make by hand, manners, hand as a manuscript, मैनुअल होता है, जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो बाई हैंड बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करना। बाई द वे मशीन आ गई, बात अलग है, लेकिन मैन्युफैक्चर इज आल्सो द सेम, टू मेक बाई हैंड। फिर मैनस, हैंड, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब मैनुअल और स्क्रिप्ट पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मैनस, ए वर्ड क्वाइंड बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मशीनरी। आर्टिफिशियल, आर्ट और फिशियो, आर्टिफिशियल मीन्स बाई ह्यूमन आर्ट रादर देन ऑकरिंग इन नेचर as artificial flowers etc. एंड आप देखिए ये सारे वर्ड आर्टिफिशियल है, आर्ट वाला फेशियो है, मैन्यूस्क्रिप्ट है, मैन्यू मतलब आपने बोला बाई हैंड है, स्क्रिप्ट मतलब लिखना है, और फिर मैन्युफैक्चर हो गया, मैन्यू फिर फैक्चर में भी वो फैक्टर्स आ गया। नाउ यू नो दीज वर्ड्स, दे आर बेसिकली रिलेटेड टू मेकिंग समथिंग। एंड नाउ से द वर्ड क्लैरिफाई, हमने कहा था FY वर्ड होते हैं, यू कैन सी दिस वर्ड आई हैव रिटन इट हियर, FY वर्ड होते हैं। तो क्लैरिफाई, सिंप्लीफाई, लिक्विफाई, टू मेक क्लियर, टू मेक सिंपल, टू मेक लिक्विड, लिक्विफाई हो जाएगा। एंड मैग्नीफाई अमंग हंड्रेड्स ऑफ अदर FY वर्ब्स, यानी FY जब भी लग जाएंगे वो अल्टीमेटली मेक से एसोसिएटेड हो जाएंगे। ओके, वोलो, टू विश, टू विल, टू बी डूइंग। ऑकर्स इन वॉलेंटरी, अगर वोलो का मतलब अगर आप किसी के लिए विश लगा रहे हैं, वोलो इज टू विश और टू विल, टू बी विलिंग। इसका मतलब क्या है, अगर आप देखेंगे मैलेवोलेंट में हमने बोला था ना, याद है आपको, ये वर्ड पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो ऑकर्स इन वॉलेंटरी, अब और वॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी, वॉलंटियर वर्ड्स टू फैमिलियर टू नीड डेफिनेशन, ये आप सब जानते ही हैं। एंड ईच क्वाइट ऑब्वियसली एक्सप्रेसिंग विश और विलिंगनेस है। अब वॉलेंटरी एक्ट होता है, आप खुद करते हैं, नहीं। लेस कॉमन एंड फ्रॉम द सेम रूट इज वॉल्यूशन, ये काफी लोग कम जानते हैं, हम वॉल्यूशन समझने लगते हैं, वो वायलेशन ऑफ द लॉ होता है, वो VI होता है, बट दिस इज वोल्यूशन, द एक्ट और पावर ऑफ विलिंग और विशिंग एज इन ऑफ हर ओन वॉल्यूशन, दैट्स व्हाट टू से, वॉलेंटरली अगेंस्ट हर वॉल्यूशन, ऐसा भी कह सकते हैं। यानी अगर आप देखेंगे तो फिक्शन वर्ड मैंने लिखा है, मैन्यूस्क्रिप्ट लिखा है, वॉलेंटरली हमने लिखा है, डन, गिवन और एक्टिंग ऑन वंस ओन फ्री विल होता है, दैट इज। तो आपको वर्ड याद रखने हैं, यानी वोलो आपको पता चल रहा है, फैक्टर्स आपको पता चल रहा है, मैनुअस आपको पता चल रहा है, यानी दिस यू नो दीज वर्ड्स, कहां से वर्ड निकल रहे हैं। ओके, इफ यू प्लीज, placate is built on root plaque, okay, that's what we need to understand, which derives from two related Latin verbs meaning plaque, क्या मतलब, to please and to appease, soothe और pacify, किसी को काम करना, ये जो placate वर्ड है PLAC, इसके दो मतलब निकलते हैं, to please someone, किसी को प्लीज करना, और टू अपीज, किसी को शांत करना, किसी को पैसिफाई करना। वर्ड मीनिंग आई हैव रिटन अंडरनीथ। इफ यू सक्सीड इन प्लाकेटिंग एन एंग्री कलीग, कोई आपसे नाराज हो गया, फ्रेंड आपका या कलीग, यू टर्न दैट पर्सन्स हॉस्टाइल एटीट्यूड इनटू वन दैट इज फ्रेंडली और फेवरेबल, आप उसको दूसरा काम करते हैं, उसको गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। हॉस्टिलिटी इज फीलिंग ऑफ शोइंग डिसलाइक और अपोजिशन। द नाउन इज प्लाकेशन,
द एडजेक्टिव इधर इज प्लकेटिव एटीट्यूड हो जाएगा, और प्लकेटरी, ए मोर प्लकेटरी एटीट्यूड टू दोज यू हैव ऑफेंडेड मे हेल्प यू रीगेन देयर फ्रेंडशिप। सेंटेंस बनाकर दिखाया प्लकेटरी को कैसे यूज करें। प्लकेटिव एटीट्यूड भी हो सकता है, प्लकेटिव नेचर भी हो सकती है, पर प्लकेटरी एटीट्यूड हो गया। दिस सेज कि ए मोर प्लकेटरी एटीट्यूड टू दोज यू हैव ऑफेंडेड, जिन्होंने आपको नाराज किया उसके प्रति आपका क्या होना चाहिए, प्लकेटरी एटीट्यूड होगा। मे हेल्प यू रीगेन देयर फ्रेंडशिप व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ और लवर्स quarrel, one of them finally makes a placative gesture. Placative gesture अपनी तरफ से वो कुछ इंडिकेशन देता है। If the war no longer fulfills his or her neurotic needs, one of them eventually will wake up some bright morning in a placatory mood. भाई अगर उसका झगड़े से बात नहीं बन रही है 2 दिन 4 दिन 10 दिन, फिर आपको लगता है कि छोड़ यार, तो यू सरेंडर, द अदर पर्सन सरेंडर, तो उस दिन वो मॉर्निंग में फिर अपने प्लेकेटरी एटीट्यूड से, प्लेकेटरी मूड से उठता है और वो अपनी तरफ से प्लेकेटिव जेस्चर देता है। You can very well see the gesture, a movement of part of a body. gesture आंख से इशारा करना, हाथ से इशारा करना, ये gesture ही होता है, ठीक है, इशारा जिसे कहते हैं। But then such is life, the other one may at that point be implacable. हो सकता है आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं लेकिन सामने वाला जरूर से ज्यादा ही नाराज है, वो implacable है। im लग जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। वैसे in लगने पर, अगर आपको याद है, I always have been saying कि in लगने पर नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर in वर्ड के आगे कोई वर्ड p से आ जाता है तो फिर वो im में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इम्प्लकेबल, इम्पॉसिबल, अगर आपको याद है, इम्पॉसिबल आगे इनएक्टिव था तो वहां पर im पॉसिबल में तो इम्पॉसिबल बना था। इम्प्लकेबल, im इज अ रीस्पेलिंग ऑफ इन, नॉट बिफोर द लेटर p, वन हु कैन बी सूद्ड, whose hostility can be changed to friendliness is प्लकेबल। जो सूद हो जाएगा वो प्लकेबल है, जो सूद नहीं होगा, जो काम नहीं होगा, वो इम्प्लकेबल हो जाएगा। इम्प्लकेबल हैज टेकन ऑन द एडेड मीनिंग ऑफ अनयील्डिंग टू एंट्रिटी और पिटी। अब इम्प्लकेबल ऐसा नहीं है कि वो गुस्से में है, शांत नहीं हो रहा, लेकिन इम्प्लकेबल ऐसा भी कहते हैं कि जो किसी के सामने रिलेंट ना करता हो, झुकता ना हो, वो भी अनयील्डिंग टू, किसी रिक्वेस्ट के आगे ना झुके, तो तब भी हम कह देते हैं कि वो इम्प्लकेबल है। अनयील्डिंग, आई हैव रिटन द वर्ड, नॉट यील्डिंग, नॉट गिव वे टू डिमांड्स, आप कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं मान रहा। एंट्रिटी मतलब रिक्वेस्ट है, और पिटी, भगवान कृष्ण गए कौरवों के सामने, उन्होंने अपनी अपील लगाई थी, बट दी फेलोज देयर कौरवास दे वर इम्प्लकेबल, उनकी बात नहीं मान रहे थे। Hence harsh, relentless, as the governor was implacable in his refusal to grant clemency. Clemency आप जानते हैं, जो भी हायर अथॉरिटीज होती हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं या गवर्नर होते हैं, वो क्लेमेंसी ऑफर कर सकते हैं, डेथ सेंटेंस माफ कर सकते हैं। तो यहाँ वो कहना चाह रहे हैं गवर्नर वाज इम्प्लिकेबल इन हिज रिफ्यूजल टू ग्रांट क्लेमेंसी हो जाए, यानी वो माना नहीं, आपने सजेस्ट तो किया बट ही डिड नॉट अग्री टू आपके रिक्वेस्ट को। तो इम्प्लिकेबल वहां भी यूज कर लेते हैं, गुस्से के साथ भी कर लेते हैं। दैट्स व्हाट इज ट्राइंग टू से। Clemency, you know now word. The noun form of implacable is implacability. Can you write the noun derived from placable? अब समझ आ जाएगा, placability word बन जाएगा, one can very well understand. If you are placid, very calm को बोलते हैं, there was a placid king, or placid. If you are placid, you are calm, easygoing, serene, undisturbed. Etymologically, you are pleased with things as they are. Okay, रहते हैं आप। Waters of a lake or sea or the emotional atmosphere of a place can also be placid. मान लीजिए किसी झील का पानी है, नदी का पानी बिल्कुल शांत है, तो प्लेसिड वाटर्स कह सकते हैं। आपका मूड बड़ा प्लेसिड है, ऐसा कह सकते हैं। द नाउन इज प्लेसिडिटी। If you are complacent, very good word. If you are complacent, you are pleased with yourself. Calm मतलब with है, you know, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। Calm means with आ जाएगा। You may और complacent है, तो placid वाला calm हो गया। You may in fact, such is one common connotation of the word be smug. अब ये जो complacent है, इस वर्ड को smug भी कहते हैं। smug का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड। नीचे अगर देखेंगे, I've written the word smug, irritably pleased with oneself, self satisfied। आपको लगता है बहुत हो गया, हालांकि बहुत नहीं हुआ होता, लेकिन आप आगे काम करना बंद कर देते हैं, that is complacent हो जाता है, smug हो जाता है। Too pleased with your position or narrow accomplishments, too easily self-satisfied, and the hour of reckoning may be closer than you realize. Reckoning means calculate, to be opinion, regard as a specific way। आपको जल्दी समझ भी आ जाता है, लेकिन उस वक्त आप मानते हैं कि नहीं, बस बहुत हो गया। Humans, as you know, are delighted to be critical of the contentment of others. जब दूसरे लोग satisfied होते हैं तो हम उसके प्रति
क्रिटिकल होते हैं, वो कहते हैं बस मुझे और नहीं करना, तो हमें लगता है यार ये कंप्लेसेंट हो गया, वो कहता है नहीं मुझे लाइफ में इतना ही चाहिए। तो यानी उसका कंटेंटमेंट आपके लिए कंप्लेसेंट आप हो सकते हैं, आपको लगे कि वो कंप्लेसेंट है, बट कंप्लेसेंट इज ऑलवेज यूज एज द नेगेटिव काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन, जिसमें आपको लगता है कि हो गया जबकि होना नहीं चाहिए था इतना सेटिस्फेक्शन। अब ये दोनों तरफ से डिपेंड करता है, रिलेटिव टर्म हो गई, यू नो। नाउ द नाउन इज कंप्लेसेंस और कंप्लेसेंसी। हाउ टू गिव एंड फॉरगिव, वेरी गुड वर्ड। गिव मीन्स फॉरगिव करना। देखिए, टू कंडोन इज टू फॉरगिव, किसी को कंडोन कर देते हैं तो हम उसे फॉरगिव कर देते हैं। फॉरगिव करना, आप किसी किसी के आपको हर्ट कर दिया, आपने फॉरगिव कर दिया। लेकिन कंडोन क्या है? इज टू फॉरगिव, ओवरलुक, पार्डन और बी अनक्रिटिकल ऑफ एन ऑफेंस। किसी ने कोई ऑफेंस कर दिया तो आप उसके प्रति क्रिटिकल नहीं रहते, छोड़ देते हैं, अनक्रिटिकल हो जाते हैं। और एन एंटी सोशल और इलीगल एक्ट, कोई गलत काम किसी ने करा है लेकिन आप उसके प्रति जाने देते हैं, काइंड ऑफ थिंग। You yourself might or might not indulge in such behavior or commit such an offense, but you feel no urge to protest or to demand censure or punishment for someone else who does it. यानी कोई ऐसा काम गलत कर दे, किसी, मान लीजिए जनरल एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था, किसी पेरेंट्स के बच्चे ने कोई बाहर नुकसान कर दिया, किसी का गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, पड़ोसी से लड़ाई कर ली, पड़ोसी आ जाते हैं कहने के लिए जी आपके बच्चे ने ऐसे करा, बट व्हाट डू यू से? यू कंडोन दैट एक्ट। कह रहे नहीं ये तो सभी बच्चे करते हैं, उस उम्र में तो होता है यार। दो यू योरसेल्फ फील कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बट यू व्हाट यू से, यू ओवरलुक, यू पार्डन और अनक्रिटिकल ऑफ एन ऑफेंस। आपने उसमें लिखा है यू योरसेल्फ माइट और माइट नॉट इंडल्ज इन सच बिहेवियर और कमिट सच एन ऑफेंस, बट यू फील नो अर्ज टू प्रोटेस्ट, आप उस वक्त प्रोटेस्ट नहीं करते हैं। और टू डिमांड सेंश्योर मीन्स क्रिटिसाइज करना, एक्सप्रेस सिवियर डिसअप्रूवल और पनिशमेंट फॉर समवन एल्स हु डज। आपने अपने बच्चे के लिए उस वक्त नहीं कहा कि इसने गलत करा है, तो आपने कंडोन कर दिया। यू मे कंडोन चीटिंग ऑन वंस इनकम टैक्स। अरे क्या है, दुनिया सब करते हैं, गवर्नमेंट के पास इतने पैसे हैं, हमें क्या, ये वो ऐसी बातें करके हम क्या इनकम टैक्स चुरा लेते हैं, हम कंडोन करते हैं, अपनी गलती को ओवरलुक करते हैं। शॉपलिफ्टिंग फ्रॉम ए बिग इम्पर्सनल सुपरमार्केट, ऐसी मार्केट जिसमें ज़्यादा सिक्योरिटी ना हो, आप वहाँ से शॉपलिफ्टिंग कर लें, यानी द थेफ्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम ए शॉप बाय समवन प्रिटेंडिंग टू बी ए कस्टमर, वो शॉपलिफ्टिंग होती है। आप इम्पर्सनल मार्केट जहाँ पर ज़्यादा पर्सन नहीं होते। और एक्सीडिंग द स्पीड लिमिट दो यू पर्सनली ऑब्जर्व द लॉ विद स्क्रूपलसनेस, हालांकि आप बड़े एथिकली इस रूल को फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी ने कानून तोड़ दिया तो आप कहते हैं चल कोई बात नहीं, फॉरगिव कर देना। द नाउन इज कंडोनेशन, ये हम समझ गए, यानी कंडोन करना, किसी की गलत बात को अग्री कर लेना, ओवरलुक कर देना और फॉरगिव कर देना, जैसे कंडोनेशन होता है। दो यू योरसेल्फ फील कि वो गलत है। एंड देन कंडोन इज बिल्ट ऑन द वर्ड डोनो। अगर आप ध्यान से देखेंगे, कंडोन कौन तो विद था और डोनो मीन्स टू गिव हो गया। द रूट वर्ड फॉर द वर्ड डोनर, वन हु गिव्स, फिर डोनेट और डोनेशन, यानी ये गिफ्ट होता है, यानी जहां पर डोनो आएगा वहां गिव होगा और कौन आएगा विद होगा, तो यानी कॉन्डोन, यानी आप उसके साथ गिव कर गए, यानी आप उसको अग्री कर गए। वहीं से डोनो से फिर वर्ड बनाया डोनर और वहीं से वर्ड बनाया डोनेट एंड वहीं से वर्ड बना डोनेशन। स्क्रूपलस इज डिलिजेंट, thoroughly following the rule and all, scrupulous person. That's all that we have for you in session number 23. You might have read many words. Now if you just see, sum up 22 and 23 together, you find you have learned around 50 new words, or at least you have learned the word, how that word moves around. So you do not have to learn the word condone, you do not have to learn the maleficent, you do not have to learn the word malefactor. Now these words are with you. So kindly revise 22, 23 together, so you will have a better blending of the knowledge. Thank you very much. God bless you.